میں نے دانستہ نادانستہ میں نے حصہ ڈال دیا تباہی میں. جن کے پاس مجھ سے زیادہ اختیار تھا انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. پالیسی نہیں تھی کہ زور زبردستی کوئی چیز ہو, میں بالکل بتاؤں, لیکن میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں سے لوگ یہ کرتے تھے. کراچی کی تباہی میں متحدہ کی شراکت داری, فاروق ستار نے کھول دی پٹاری. ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں ملوث ایم کیو ایم مافیا بن گئی. گھر کے بھیدی عشرت العباد نے بھی لنکا ڈھا دی. کیا آپ اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ متحدہ کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے؟ نہیں, اس سے بالکل انکار نہیں کروں گا. بھتہ وصول کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. مافیا بن گیا؟ بالکل مافیا بن گیا تھا. بانی کی کہانی ختم ہونے کے بعد متحدہ پاکستان کا پہلا یوم تاسیس. پی آئی بی کالونی میں جلسہ, کارکنوں کا جوش و خروش, رہنماؤں کا خطاب جاری. فاروق ستار کا لندن والوں سے علیحدگی کا بیان تسلیم کیا جانا چاہیے. خورشید شاہ نے گرفتاری کو غلط قرار دے دیا. پولیس نے پکڑا نہیں, صرف ضمانت کرانے کو کہا. وزیر اعلیٰ سندھ کی وضاحت. فاروق ستار, خالد مقبول اور دیگر رہنماؤں کو پکڑنے کے لیے کراچی پولیس بے بس. 22 اگست کی اشتعال انگیز تقریر کے 3 مقدمات راؤ انور کے سپرد. قمر منصور کی 5 مقدمات میں ضمانت منظور. شہر اقتدار میں ظلم کی نئی کہانی, چھریاں گرم کر کے جسم پر لگائی گئیں, بیلٹ سے مارا جاتا رہا. گھریلو ملازمہ سائمہ کا پولیس کو بیان, مالکن الماس اور بیٹا ضمانت پر رہا. سگی خالہ اور خالو جلاد بن گئے. گجرانوالہ کے نواب چوک میں 3 سال کی لے پالک پر وحشیانہ تشدد, تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل. انسانیت دشمن بھارت آبادیوں کو نشانہ بنانے سے باز نہ آیا. کنٹرول لائن کے کھوئی رٹا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ, خاتون جاں بحق, پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. بھارت نے پاکستان کو افغانستان کے ذریعے غیر مستحکم کیا. سمجھوتا ایکسپریس کے ملزموں کو کٹہرے میں لایا جائے. پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کا مطالبہ. درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین بھتیجے سمیت کراچی میں منظر عام پر اندرون سندھ مریدین سے ملنے گئے تھے. 20 مارچ کو بھارت جانے کا فیصلہ. ملک گیر آپریشن رد الفساد, اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور سمیت کئی شہروں میں چھاپے. 35 مشتبہ افراد گرفتار. اسلحہ, بارود اور غیر ملکی کرنسی برآمد. عوام کی گنتی کا آغاز, 63 اضلاع میں مردم شماری جاری. عملہ گھر گھر جا کر معلومات اکٹھی کرنے میں مصروف. کراچی والوں کے تحفظات کم نہ ہو سکے. بندے کی انٹری کر کے لے گا, جبکہ ہمارے گھر میں 3 بھائی ہیں, شادی شدہ ہیں مجھ سمیت, تو ان میں کسی کی انٹری نہیں کری, صرف ابو کی انٹری کر کے وہ لے گا. مفتہ نہیں چلے گا, پیسہ خرچ کرنا ہوگا. نادرا نے مردم شماری ڈیٹا کی تصدیق کے لیے فی SMS 10 روپے مانگ لیے. حکام کا صرف مشکوک افراد کی تصدیق کرانے کا فیصلہ. دنیا نیوز کی کوششیں رنگ لانے لگیں. 1,93,000 کنال اراضی کے جعلی عدالتی فیصلوں کی تحقیقات. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا. پہلا اجلاس پیر کو ہوگا. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں, صرف انسانیت کے دشمن ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تاتارستان کے صدر سے ملاقات کے بعد گفتگو. مختلف معاہدوں پر دستخط. قطری خط دنیا کی کوئی عدالت قبول نہیں کر سکتی, عمران خان کا دعویٰ. PSL فائنل کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا. رچرڈ ریلو کٹے ملنے پر روتا رہ گیا. پرویز خٹک کی جگہ ہوتا تو پشاور زلمی کو 2 کروڑ نہ دیتا. کپتان کی ٹونائٹ ود موید پیرزادہ میں گفتگو. 35 کروڑ کا بنگلہ ڈھونڈ کر لاؤ, انعام پاؤ. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اعلان. الزام ثابت ہونے پر سیاست چھوڑ دوں گا, اسد قیصر کا چیلنج. لوگوں کو بجلی ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا. عابد شیر علی کو لوڈ شیڈنگ کے بجائے بجلی ختم کرنے کی فکر. جوش خطابت نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا. میئر کراچی وسیم اختر کے لیے نئی مشکل. میونسپل کارپوریشن کو پراپرٹی لیز کرنے کا اختیار 1 سال تک محدود. نیلامی کے لیے حکومت سے پیش کی اجازت کی شرط.
جائیداد کی لالچ نے رشتوں کی پہچان مٹا دی. لاہور کے آزادی چوک پر کزنز کی فائرنگ سے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق, راہگیر زخمی. فلسطینی نوجوان کی شہادت پر مغربی کنارے میں صہیونی فوجیوں سے جھڑپیں. اسرائیل کو نسل پرست ریاست قرار کیوں دیا؟ سیکرٹری جنرل کے دباؤ پر اقوام متحدہ کی انڈر سیکرٹری مستعفی. ادب نہ لحاظ, ٹرمپ میزبانی بھول گئے. جرمن چانسلر سے ملاقات, صدر منہ دوسری جانب منہ کیے بیٹھے رہے, ہاتھ بھی نہیں ملایا. اینگلا مرکل کو امیگریشن معاملے پر لیکچر پلا دیا. گلوکار نعمان جاوید سے علیحدگی, اداکارہ جانا ملک طلاق لے کر خوش, اختلافات کی بھی تصدیق. جس طرح سے ہم نے اپنے دماغ میں سوچا تھا کہ یوں ہوگا ایسا ہوگا, اور ڈفرینسز ایسے ہیں کہ کوئی کامن گراؤنڈ نہیں مل رہا ہے, سو ہمارا میوچل ڈیسیجن تھا. کچھ چھپایا نہ کسی کو فکسنگ پر اکسایا. شادب حسن نے اینٹی کرپشن یونٹ کے الزامات مسترد کر دیے, ٹرائبونل میں جانے کا فیصلہ. ون ڈے ٹیم کی خراب کارکردگی, حفیظ نے کھلاڑیوں, ٹیم مینجمنٹ اور پالیسی میکرز کو ذمہ دار قرار دے دیا. میچ فکسرز پر تاحیات پابندی لگانے پر زور. نازک کلائیوں نے جان لگائی, کامیابی ہاتھ نہ آئی. لڑکوں نے 10 پن بولنگ کا کمال دکھا دیا, کراچی میں کھیل کی مقبولیت. ایگزام سے فارغ ہوئے تو یہاں آئے, فرینڈ کے ساتھ ایکسرسائز کریں, تھوڑا سا فن کریں, گیمز وغیرہ, مزہ آ رہا ہے. لاس اینجلس میں ایرانی نژاد امریکیوں کا جشن نوروز, بے گھر افراد کے ساتھ ہلا گلا, سڑکوں پر میلہ لگ گیا. جو کہتے تھے دل دیا ہے جاں بھی دیں گے ایم کیو ایم تیرے لیے, اب انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کرتی رہی. ڈاکٹر عشرت العباد اور فاروق ستار نے پٹاری کھول دی, اعتراف کر لیا. ایم کیو ایم اپنی 33 سالہ تاریخ میں جن الزامات سے انکار کرتی رہی, پارٹی کے 2 بڑے کھلاڑیوں نے دنیا نیوز کی اسکرین پر وہ بات مان لی. ڈاکٹر عشرت العباد اور ڈاکٹر فاروق ستار دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کرتی رہی, یہ سیاسی جماعت نہیں مافیا بن گئی تھی. دنیا نیوز کے 2 پروگرامز, 2 ڈاکٹرز, 2 اعتراف. ٹارگٹ کلنگ, بھتہ خوری سیاسی جماعت نہیں مافیا. کراچی کی سب سے بڑی جماعت کی تاریخ تشدد, مار دھاڑ اور قتل و غارت سے عبارت. بالآخر ایم کیو ایم کے 2 بڑے کھلاڑیوں نے مان لیا. پہلے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے لب کھولے. دنیا نیوز کے پروگرام ایک دن دنیا کے ساتھ میں بولے, ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کرتی رہی ہے, پارٹی سیاسی جماعت نہیں مافیا بن گئی تھی. کیا آپ اس بات سے بھی انکار کریں گے کہ متحدہ کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے؟ نہیں, اس سے بالکل انکار نہیں کروں گا. بھتہ وصول کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے, بالکل کرتے تھے. مافیا بن گیا؟ بالکل مافیا بن گیا تھا. دوسرا اعتراف آیا ڈاکٹر فاروق ستار کی طرف سے دنیا نیوز کے پروگرام محاذ میں. کہنے لگے ایم کیو ایم کے لوگ زور زبردستی اور تشدد کرتے رہے. میں نے دانستہ نادانستہ میں نے حصہ ڈال دیا تباہی میں, جن کے پاس مجھ سے زیادہ اختیار تھا انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. پالیسی نہیں تھی کہ زور زبردستی کوئی چیز ہو, میں بالکل بتاؤں, لیکن میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں سے لوگ یہ کرتے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار نے شکوہ کیا کہ -1 کے باوجود انہیں قبول نہیں کیا جا رہا. ڈاکٹر عشرت العباد کہنے لگے فاروق ستار پر اعتبار نہ ہونے کی وجہ ان کے لندن سے وہ مبینہ رابطے ہیں جو اب بھی پس پردہ جاری ہیں. اور ڈاکٹر فاروق ستار کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاروق ستار کا لندن سے علیحدگی کا بیان تسلیم کیا جانا چاہیے. فاروق ستار کی گرفتاری کا فیصلہ درست نہیں تھا, یہ ماننا ہے اپوزیشن لیڈر کا. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو صحیح فیصلہ تسلیم کرنے کی عادت نہیں رہی. اب فاروق ستار کی گرفتاری کے حوالے سے ان کا ورژن سامنے آیا ہے. سندھ حکومت کے ترجمان کی جانب سے تو کچھ اور کہا گیا, لیکن خورشید شاہ جو کہ سینئر رہنما ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کا فیصلہ درست نہیں تھا.
मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने फारूक सत्तार की गिरफ्तारी के फैसले को गलत करार दिया। बोले फारूक सत्तार का लंदन वालों से अलहदगी का बयान तस्लीम किया जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार एक पार्लियामेंट्री लीडर है एक पार्टी का, उसने लंदन एमक्यूएम से अलहदगी का ऐलान किया है। अगर इन केस उनका कोई इनडायरेक्ट वे में ताल्लुक भी है तो ज़ाहिरन ने तो उसने इनकार किया है ना, तो ज़ाहिर जो बात है उसको मानना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दे तो चीफ जस्टिस 3 दिन के अंदर फैसला करें। इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिरी होना चाहिए और उसको फुल अपना जो है इंडिपेंडेंसी उनको हो और उनके फैसले को चैलेंज करने के लिए अगर कोई करे भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 दिन के अंदर उसका फैसला करें। अपोजिशन लीडर का कहना था हुक्मरानों को सही फैसला तस्लीम करने की आदत नहीं, फैसला हक में आए तो ठीक और अगर खिलाफ आए तो इदारे पर हमला कर देते हैं। ऐसे में आपको ये भी आगाह करें कि 22 अगस्त की इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात राव अनवार के सपुर्द कर दिए गए हैं। इन मुकदमात में फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, बानी मुतहदा और दीगर मतलूब हैं। पुलिस ने अदालत में मुलजिमों की गिरफ्तारी पर बेबसी जाहिर की थी। कमर मंसूर की 5 मुकदमात में जमानत मंजूर हो चुकी है। 22 अगस्त की इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात राव अनवार के सपुर्द कर दिए गए हैं। इससे पहले राव अनवार ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार करने के मुकदमे में भी शोहरत पा चुके हैं। जो ये मुकदमात सपुर्द उनके किए गए इनमें फारूक सत्तार, खालिद मकबूल और दीगर मतलूब हैं। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना 33वां यौम तासीस मना रही है। इसी पर बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सलीम से। बाबर, बगैर बानी के आज कितनी मुख्तलिफ है कहानी? ये पहली दफ़ा हो रहा है शायद कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के झंडे के नीचे 2 मुख्तलिफ यौम तासीस हैं। एक लंदन में है, एमक्यूएम लंदन की जानिब से कह दिया गया था कि कराची में किसी किस्म की कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, और दूसरा एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो कि PIB कॉलोनी में जो मरकज़ है एमक्यूएम पाकिस्तान का, उसके बिल्कुल नज़दीक KMC ग्राउंड में मनाया जा रहा है। तमाम वर्कर्स को और इलाकाई ज़िम्मेदारान को यहाँ मदऊ किया गया है। अब बहुत फ़र्क है, इससे पहले तकारीर जो है वो किसी और जज्बे और किसी और पॉइंट पर होती थी। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो रहनुमा हैं, जिनमें खालिद मकबूल, सिद्दीकी, ख्वाजा इजहारुल हसन जो अब तक खिताब कर चुके हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। इसके साथ गुज़िश्ता रोज़ फारूक सत्तार को जो गिरफ्तार किया गया था उस मामले पर सिंध हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया है, और इसके साथ साथ माजी में होने वाली गलतियों को ना दोहराने का एक दफ़ा फिर आज़म किया है। इस वक्त ये 33वां यौम तासीस जारी है। मेरे अक़ब में आप शायद देख सकते होंगे लोगों की एक बड़ी माकूल तादाद है, जिसके बारे में रहनुमा ये कह रहे हैं कि ये अवाम नहीं है, ये सिर्फ वोटर्स नहीं हैं, इनमें एक बड़ी तादाद जो है वो ज़िम्मेदारान और कारकुनान की है, और बाकायदा आवाम को जो है वो नहीं बुलाया गया है इस यौम तासीस में। इस वक्त भी ये यौम तासीस जारी है, जो मुकर्रीन है उनका खिताब जारी है, एक जानिब स्टेज है, दूसरी जवाब। ठीक है बाबर सलीम, एक यौम तासीस इधर और एक यौम तासीस उधर। बहुत शुक्रिया आपका। और हस्बे मामूल भारत पर जंगी जुनून सवार है और पाकिस्तानी आबादी पर भारत की जानिब से फिर गोलाबारी की गई है, और कंट्रोल लाइन का खुईरटा सेक्टर है जहां पर भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और बेगुनाह बेकसूर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है, और इसके नतीजे में एक 60 साल खातून अपनी जिंदगी की बाजी हार गई हैं। लेकिन उसके बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिस पर दुश्मन की बंदूकें खामोश हो गईं। मुल्क गिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। कई शहरों में छापे मारे गए और इस दौरान 35 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इन अफराद से असलहा, बारूद और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। और इसके अलावा 2 भारतीय शहरियों की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। दरगाह निजामुद्दीन औलिया के गद्दी नशीन मंजर आम पर आ गए। आसिफ निजामी और उनके साथी कराची पहुंच गए। आसिफ निजामी अंदरून सिंध मुरीदैन के पास थे, जहां राबते का कोई निजाम नहीं था। इसी सबब ये कंफ्यूजन पैदा हुई। दो
दो भारतीय शहरियों की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। दरगाह निजामुद्दीन औलिया के गदी नशीन आसिफ निजामी और उनके साथी नाजिम निजामी से उनके अहले खाना का 3 रोज कबल राब्ता मुनक़ता हो गया था, जिसकी इत्तला भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद को दी गई। भारतीय कमीशन ने पाकिस्तानी हुक्काम को दोनों अफराद की गुमशुदगी के हवाले से आगाह किया, जिसके बाद सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसिफ निजामी की तलाश शुरू कर दी गई। ताहम हफ्ते की शाम दोनों अफराद कराची पहुँच गए। ज़राए का कहना है कि आसिफ निजामी अपने साथी के हमरा अंदरून सिंध गए थे, जहाँ मोबाइल नेटवर्क की सर्विस मुयस्सर नहीं थी। आसिफ निजामी और नाजिम निजामी 20 मार्च को भारत रवाना होंगे। इस्लामाबाद में एक और अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ और वहां पर एक बार फिर एक कमसिन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर 2 माँ बेटा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन उसके बाद जमानत पर उनको रिहाई भी मिल गई। बच्ची की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए, जो शिकायत लगाई गई, वो ये थी कि गर्म छुरी लगाई गई, इसके साथ साथ बेल्ट से भी उसे मारा जाता रहा। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सईद अब्बासी। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और वाकया। गिरफ्तार माँ बेटे के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का 50-50 हजार के जमानती मचलकों के एवज जमानत का हुक्म। तफ्तीशी अफसर अदालत से गैर हाजिर। सब इंस्पेक्टर अदालत के सवालात का जवाब ही न दे सके। जाने कितने लबों पे गिले हैं। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि पड़ोसियों ने दुश्मनी की वजह से झूठा मुकदमा बनवाया। 70 साला बुजुर्ग खातून पर बेईमाना तशद्दुद का झूठा इल्जाम लगाया गया। अदालत ने कहा कि FIR में लगाई जाने वाली दफात काबिल जमानत हैं। इससे पहले इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि बच्ची के बाएं बाजू पर जलने का निशान है, जबकि गर्दन पर नाखून की खराशें हैं। पुलिस बयान में कमसिन बच्ची का कहना था कि इसे बेल्ट से मारा जाता था। मेरा कमरा साफ करो, मैंने कार का ही तो बाजी कितनी नहीं किया, तो बाजी आई ना, मुझे पकड़ के मारने लग पड़ी। बेटा कहता है इसके बाल काट दो, सारे बाल काटे तो फिर खुद बेटा छुरी लेटर से गर्म करके ना मुझे लगाने लग पड़ा। सेक्टर E11 में पेश आने वाले वाकये की इत्तला पुलिस को एक शहरी ने गुज़श्ता रात दी थी। बच्ची का ताल्लुक रहीम यार खान से है और वो गुज़श्ता 9 माह से इस्लामाबाद में काम कर रही थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर और यासिर मलिक के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। इसीलिए कहते हैं अपनी सगी माँ का कोई बदल नहीं। बिन माँ की बच्ची मासी ने गोद ली मगर माँ न बन सकी। गुजरांवाला में 3 साल की नूर फातिमा को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला की 3 साला नूर फातिमा की मां 1.5 माह कबल वफात पा गई। मरने वाली की बहन दिलशाद ने कमसिन बच्ची को गोद ले लिया। नवाब चौक के रिहायशी दिलावर और उसकी बीवी दिलशाद इसे बड़े चाव से घर लेकर आए, मगर बिन माँ की बच्ची को वो प्यार न दे सके। नूर फातिमा पर दिलावर ने तशद्दुद किया, उसके जिस्म को गर्म चीज से दागा गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत के पेश नजर सिविल अस्पताल मुंतकिल करा दिया गया। 1,93,000 कनाल अराजी के जाली अदालती फैसलों की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया है। आपको याद होगा कि दुनिया न्यूज ने तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल की खबर नशर की थी। देखते हैं इस बारे में मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की सरबराही में आला सतही जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। दुनिया न्यूज ने जाली अदालती फैसलों से मुतालिक 1,93,000 कनाल अराजी स्कैंडल बेनकाब किया था, जिसकी असर नो तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया गया है। कमीशन के मेंबरान में रिटायर्ड सेशन जज सैयद नासिर अली शाह, जावेद रशीद महबूबी और जवार शाह शामिल हैं। कमीशन जाली अदालती फैसलों से मुतालिक अराजी स्कैंडल की 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करेगा। तहकीकाती कमीशन का पहला इजलास 20 मार्च को सेशन अदालत में होगा, जो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा। मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज, लाहौर। अब कुछ बात कर लेते हैं मरदमशुमारी की। नादरा के पास इस वक्त 13 करोड़ अफराद का रिकॉर्ड मौजूद है। मरदमशुमारी के डेटा की तस्दीक के लिए नादरा ने फी SMS 10 रुपए मांग लिए हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं शोएब निजामी।
मरदम शुमारी डाटा की तस्दीक के लिए नादरा से मदद लेने पर गौर। नादरा ने फी SMS 10 रुपए फीस मांग ली। 13 करोड़ अफराद का डाटा मौजूद, करोड़ों रुपए की आमदन मुतवक्को। नादरा हुकाम ने कहा है कि तमाम शहरियों के रिकॉर्ड की तस्दीक मुमकिन नहीं, शक शुबा की सूरत में ही नादरा से तस्दीक कराई जाए। नादरा के पास मौजूद 13 करोड़ अफराद का डाटा तस्दीक में मुआविन साबित हो सकता है। ज़राए के मुताबिक तस्दीक का तरीकाकार तय किया जा रहा है। इम्कान है कि तमाम डाटा की तस्दीक के बजाय सिर्फ मशकूक शख्स से मुतल्लिक मालूमात की ही जांच पड़ताल कराई जाएगी। शुएब निज़ामी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। मुल्क में जारी खाना और मरदमशुमारी के नताइज कौमी और सूबाई असम्बलियों पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं, इस बारे में बता रही हैं मरियम अली। पाकिस्तान में पिछले चंद रोज से हर तरफ एक ही बात सुनाई दे रही है और वो है खाना और मरदमशुमारी। और इस खाना और मरदमशुमारी के बाद मुल्क की असम्बलियों और उनकी नशिस्तों में कई तब्दीलियां देखने में आ सकती हैं, जिसके बारे में दुनिया न्यूज के पॉलिटिकल सेल ने एक तहकीक की है कि इस मरदमशुमारी के बाद सूबाई असम्बली पर कितनी तब्दीलियां मुरतब हो सकती हैं। तहकीक के मुताबिक 1998 की मरदमशुमारी में पंजाब की कुल आबादी 7 करोड़ 36 लाख 21 हजार रिकॉर्ड की गई थी। इस हिसाब से तो पंजाब के एक हल्के की औसत आबादी 2,47,882 रखी गई है, जबकि सूबाई असम्बली के लिए बराह रास्त 297 नशिस्तें जो छठी मरदमशुमारी के बाद बढ़कर मुजवजा तौर पर 441 तक पहुँच सकती हैं। बात हो जाए सिंध की तो वहाँ 1998 में कुल 3 करोड़ 4 लाख 44 हजार आबादी थी और एक हल्के की औसत आबादी 2,34,153 थी। सूबे भर से अवामी नुमाइंदगान की कुल तादाद 130 थी, जो अब बढ़कर 215 हो सकती है। 1998 की मरदमशुमारी में खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ की आबादी 1 करोड़ 77 लाख 44 हजार सामने आई, जबकि एक हल्के की औसत आबादी 1,79,232 थी। सूबाई असम्बली के लिए कुल नशिस्तें 99 रखी गई हैं। इस दफा ये तादाद बढ़कर 150 तक जा सकती है। और बलोचिस्तान, जिसकी आबादी 5वीं मरदमशुमारी तक 65 लाख 66 हजार थी और इसके एक हल्के की औसत आबादी 1,28,745 थी और सूबाई असम्बली के लिए बलोचिस्तान से 51 नशिस्तें थी, जो हालिया मरदमशुमारी के बाद बढ़कर 104 होने का इम्कान है। और अब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तौसी से मुतालिक आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि सिर्फ एक चीनी कंपनी ने टेंडर जमा कराया, जबकि 8 कंपनीज ने आपस में एका कर लिया। ये इंकशाफ हुआ। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा खुसूसी नसीर वागा हमारे साथ मौजूद है। नसीर वागा, ये तो बड़ी चालाकी से काम लिया है। टेंडर तो मिला ही मिला, कम खाएंगे लेकिन मिल के खाएंगे। देखिए, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत की तोसी पर तकरीबन 35 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और हैरान कुन बात तो यह है कि 8 चीनी कंपनियों, जिनमें एक तुर्की की कंपनी शामिल थी, उन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट्स तो खरीद लिए, लेकिन सिर्फ एक चीनी कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट जो है वो टेंडर डाला है, जिससे ये शुबहात पैदा हो रहे हैं कि इन तमाम कंपनियों ने आपस में एका कर लिया है और मुकाबले की फिजा पैदा ही नहीं होने दी। इस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के आला अफसरान भी हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है। और इस हवाले से देखते हैं कि बाद में अब दोबारा री टेंडर होता है या नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नसीर वागा। कहां मुल्क से अंधेरे मिटाने के दावे और कहां मुल्क से बिजली मिटाने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जोश खताबत में लोड शेडिंग के खात्मे के बजाय मुल्क से बिजली खत्म करने का ही इंदिया दे दिया। लोगों को बिजली खत्म करने का वादा किया था। पाकिस्तान की अवाम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वादा किया था हमारा मैच हमारे साथ अपने आप खेलने। लोगों को बिजली खत्म करने का वादा किया था, बिजली खत्म करने का वादा किया था, बिजली खत्म करने का वादा किया था। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक। कराची में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वर्कर्स कन्वेंशन, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का वीडियो लिंक के जरिए खिताब। इब्तदाई तहकीकात में बेज़ाब्तियों की शिकायत मुस्तरद। नैब ने रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे को क्लीन चिट दे दी। और
اور لاہور کے علاقے ٹبی سٹی میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد کو قتل کرنے والے ملزم کا خاکہ جاری.